हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो का टॉपिक मैंने सोचा है वो है ट्रायंगल। उससे रिलेटेड मैंने एक ट्रायंगल की डेफिनेशन लिखी है बोर्ड पर, और वो डेफिनेशन इस प्रकार है कि अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है नॉन कोलिनियर। बाकी तो वर्ड्स का आई थिंक आपको मतलब पता होगा कि क्लोज फिगर क्या है, और थ्री पॉइंट्स हैं ये भी समझ में आ रहा है। नॉन कोलिनियर मतलब जो एक सीधी लाइन में ना हो, मतलब ये अगर सीधी लाइन में होंगे हम इसको जोड़ेंगे तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। ट्रायंगल तभी फॉर्म होगा जब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर ना हो, अलग अलग लाइंस पर हो, ऐसे कह सकते हैं। तो जब हम इसको फॉर्म ऐसे जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे थ्री पॉइंट्स को, तो जो फिगर हमें मिलता है उसे हम कहते हैं ट्रायंगल। अब पिछले वीडियो में मैं आपको ट्रायंगल्स के काइंड्स के बारे में ऑलरेडी बता चुकी थी कि ट्रायंगल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। Like agar all the sides are equal, it is called an equilateral triangle. In a triangle, if two sides are equal, then it is known as isosceles triangle. And if no one side is equal to the another side, then it is called an scalene triangle. On the basis of angles, again the triangles are of three types, like acute angle triangle, right angle triangle and obtuse angle triangle. ये तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब मैं आपको ट्रायंगल्स के एलिमेंट्स के बारे में बता रही हूँ कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ ट्रायंगल। अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, एनी ऑफ द ट्रायंगल इफ वी हैव, देन हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव इन अ triangles. So we have 6 elements in a triangle with 3 vertices and 3 of its sides. It could be any of the side, maybe equal or non-equal, whatever. So if 3 sides and 3 vertices are there in a triangle, so we can say a triangle has 6 elements, A, B, C. Separately A, B, C, it is showing what the 3 vertices, and if we join any of the 2 points like A और B को अगर हमने join किया तो ये एक side बनी triangle की, AB is a side, BC is a second side and AC is a third side. So we can say that in a triangle there are 6 elements. Now another thing which I want to tell you, इसके दो और टर्म्स होते हैं जो आपको पता होना और उनके बीच का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। उसमें से एक वर्ड है इसका एल्टीट्यूड, या फिर हम कहें ट्रायंगल की हाइट, और दूसरा होता है मीडियन। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स मीडियन और एल्टीट्यूड में कंफ्यूज हो जाते हैं। दे कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज मीडियन एंड व्हाट इज एल्टीट्यूड। तो जस्ट लेट मी टेल यू, मीडियन इज व्हाट, कि सपोज if we are just going to find a midpoint of any of the line segment like AB, BC or CA, take any line segment and take its midpoint. Let this point, it is midpoint of BC, M is a midpoint of BC, and which is the opposite vertices of vertex of the BC, that is A. तो मीडियन वो होता है जो कि किसी एक लाइन के मिड पॉइंट को उसकी opposite vertex से join करता है, that is known as median. A line joining the midpoint of a line segment with its opposite vertex is called a median. And now what is altitude? Altitude is what? If we draw a perpendicular from any of the line segment. So suppose if I am making here another triangle. Suppose this one is a triangle. Again, I am going to just give it a name, P Q R. It's another triangle. और P से अगर हमने 90 डिग्री की कोई एक लाइन ड्रॉ की है, ये जो लाइन ड्रॉ की है यहाँ पे ये सपोज मिल रही है, यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, x सपोज हमने इसको नाम दिया, so px is known as the altitude or the height of a triangle. Got it? दोनों में डिफरेंस क्या है? This point x is not the midpoint of QR. If we are going to find the midpoint of QR and let it become over there, and if we join with P, so this line PY is known as the median.
PY here in this figure is the median and PX in the same figure it is called the altitude. दोनों में difference होता है. अब the question is that कि how many medians or the altitudes are there in a triangle. So देखिए triangle एक shape है, उस shape को हम जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं. सपोज हमने इसको QR को बेस बनाया, सो ये इसका वर्टेक्स हो गया. ठीक, अगर सपोज कि हम इस QR को उठा के पलट के ऐसे रख दे और वो PQ नीचे बेस बन जाए, PQ अगर बेस बन जाता है, ये ऐसे खड़ा हो जाता है, तो ऑब्वियसली क्या होगा. I just make another triangle over there. Let this is P और दिस इज Q. मैंने इस ट्रायंगल को पलट के U रख दिया. अब ऐसे रखने से क्या हुआ कि ये R चला गया यहां पर. ठीक, ये बन गया R. तो अब अगर हमें निकालना है इसका मिड यानी कि मीडियन, तो हम QR का नहीं, अब हम यहाँ पे PR का मीडियन निकालते हैं. सपोज हम दूसरा पॉइंट लेते हैं, PR का हमने मीडियन निकाला और उसको Q से ज्वाइन किया. अगर मिड पॉइंट निकाल के अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करेंगे तो वो बनेगा मीडियन. और अगर हम इस पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं, अगर हमने इस पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया, सपोज दिस वन इज अ 90 डिग्री एंगल, सो दिस लाइन इज नोन एज एल्टीट्यूड. तो वी कैन टेक एनी ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एज इट्स बेस or the other two sides of a triangle. So we can easily say that there are three medians in a triangle. In any of the triangle, we can say that there are three medians. We can use the triangle in any of the situations. So we can say that there are three medians in a triangle, BN, OC and AM. In this figure, three medians are there. And if we have to find out the altitude, so altitude also we can take फ्रॉम द थ्री सेपरेटली वर्टेक्स. सपोज कभी हमने R को लेकर के यहाँ पे 90 डिग्री ज्वाइन कर दिया. सपोज दिस वन इज 90 डिग्री, तो दिस वन इज वन ऑफ द एल्टीट्यूड, दिस इज सेकेंड एल्टीट्यूड, दिस इज द थर्ड एल्टीट्यूड. तो वी कैन से दैट इन अ ट्रायंगल देयर आर थ्री मीडियंस and three altitudes. So according to the given question, we will use this property of a triangle. So when I'll explain the question, there I'll tell you what's the use of altitude and median is over there. Now come to the next point, that is the property of a triangle. What are the properties of a triangle? One very important property, that is what? The angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं तो क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी. एज जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि किसी भी ट्रायंगल में थ्री एंगल्स होते हैं, तो इन सब का जो सम होता है, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ए बी सी, सो व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी उसी को ही कहते हैं जहां पर हम इन एंगल्स की बात कर रहे हैं. बच्चों में फिर से आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि बच्चे एंगल्स और साइड्स, इसमें भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो डिफरेंस क्रिएट मतलब समझ नहीं पाते हैं क्योंकि ध्यान से पढ़ते नहीं है. मैंने इधर एंगल्स की बात की है और क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है और उसमें साइड दिए होते हैं तो क्या करते हैं बच्चे कि साइड का सम कर देते हैं. साइड का सम करना एंगल सम प्रॉपर्टी में नहीं होता है, वो साइड से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी होती है जिसके बारे में मैं अभी इसी वीडियो में बात करूंगी. ये प्रॉपर्टी जो है वो एंगल से रिलेटेड है, एंगल सम प्रॉपर्टी. तो क्या होता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी is equals to 180 degree. This is known as the angle sum property. This is the first property of the triangle. This is known as angle sum property. Another property related to the angles only is what? Exterior angle property. Exterior angle property. What is that property? This property tells us about the exterior angle of a triangle.
What is the exterior angle? Suppose this one is a triangle P Q and this point is R और ये कहीं आगे लाइन बढ़ी हुई है और हम इसको कुछ भी एक नाम दे सकते हैं, इसको आपने x दिया y दिया whatever, एक पॉइंट है उस लाइन पर, तो हम इसको क्या कहेंगे कि दिस वन एंगल इज नोन एज द एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल, ठीक है. अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये तो भी मैंने आपको बताया कि इसको एक्सटीरियर एंगल कहा जाएगा. एक्सटीरियर एंगल भी तीन होते हैं, अगर हम इस तरफ एक्सपेंड कर दें लाइन को तो यहाँ बन जाएगा, अगर इस लाइन को एक्सपेंड कर दें तो इधर बन जाएगा. तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. अभी हम आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग द सम ऑफ टू ऑपोजिट एंगल, the sum of two opposite angle is equals to the exterior angle of a triangle. Exterior angle हम लोग निकालते कैसे हैं? This is the sum of the two opposite interior angles. These are known as the interior angle. This one is the exterior angle. तो exterior angle जो होता है वो इक्वल होता है एंगल P और एंगल Q, मतलब कि टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के. द थर्ड एंगल वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जिसके साथ ये एडजेसेंट है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस एडजेसेंट एंगल, वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिट एंगल्स. सो एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. तो हियर वी कैन से PRX, it's an exterior angle which is equals to angle P plus angle Q. So this is what the second property related with that angles. Good. Now some more properties are there of the triangles. Let us talk about those properties. Suppose if we are talking about an isosceles triangle, isosceles की थोड़ी अपनी एक अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, इक्विलेटरल की भी होती है, बट अभी हम यहाँ पे पहले आइसोसेलेस डिस्कस कर रहे हैं. आइसोसेलेस ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनके की टू साइड्स इक्वल होते हैं. हम इस क्वेश्चन में मान लेते हैं कि P Q R, this one is an isosceles triangle. So here we have PQ is equals to PR. We have here PQ is equals to PR. Why I am writing this? Because it is already given that this is an isosceles triangle. So two sides of this triangle, I just have taken that PQ is equals to PR. So what is the property of an isosceles triangle? That the base angles of an isosceles triangles are always same, equal. So if there is an isosceles triangle, two of the sides are equal, so we can say that the base angles of an isosceles triangle are equal. इसी का ऑपोजिट भी हम लोग यूज करते हैं. अगर हम लोग ऐसे कह दें कि बेस एंगल्स अगर किसी ट्रायंगल के इक्वल हैं तो उसकी जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल होंगी, मतलब वाइस वर्सा होता है थ्योरम का. PQ is equals to PR, so angle Q is equals to R. ये यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि if PQ is equals to PR, so angle Q is equals to angle R. But suppose कि in any of the question it is given that angle Q is equals to angle R, that's an obvious mean that PQ is equals to PR. How we have to use this theorem that we will see in the question when I am going to solve. I'll tell you how to solve this. So you just have to understand this property we are going to use when we are start solving the sums related to this topic. Now, these were the two properties of an isosceles triangle. Now I am telling you about the equilateral triangle. Equilateral triangle, all the three sides are equal, so obviously all the three angles are also going to be equal in an equilateral triangle. This one is a property. Suppose the angle A, B, C is a triangle, and if it is given AB is equals to BC is equals to CA, that it means कि angle A is equals to angle B is equals to angle C. This is the property of an equilateral triangle. अब हम जो एक और प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं वो ट्रायंगल्स की साइड्स से रिलेटेड है. अभी तक की जितनी भी मैंने बताई थी वो सब एंगल्स रिलेटेड थी, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल की थोड़ी सी डिफरेंट थी, वो मैंने आपको बता दी.
और अब हम आते हैं कि वो प्रॉपर्टीज जो ट्रायंगल्स की साइड्स के बारे में बताता है। तो ट्रायंगल की साइड्स की प्रॉपर्टी जो होती है वो ये कहती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is always greater than the third side. इस टाइप का एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आता है जहां पर आपको किसी ट्रायंगल की 3 साइड्स गिवन होती हैं और आपको ये पता लगाना होता है कि क्या वो ट्रायंगल पॉसिबल है। तो उसमें हम लोग करते कैसे हैं कि किसी भी 2 साइड्स का हम लोग सम करके देखते हैं। अगर वो थर्ड साइड से ज्यादा आता है तो ये तीनों बार करके देखना होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको जब सॉल्व करना सिखाऊंगी तो मैं ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को बताऊंगी कि कैसे सॉल्व किया जाता है। बट फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि साइड से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि किसी भी ट्रायंगल के जो कोई भी अगर हम 2 साइड्स लेते हैं यहाँ पर, एक मैं आपको एग्जांपल लेके बता देती हूँ। सपोज कि एक मैंने ट्रायंगल लिया यहाँ पर, इसमें मैंने ये माना कि ये मैंने माना कि 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। अब हमें ये पता लगाना है कि क्या ये ट्रायंगल पॉसिबल है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्टली ऐड 3 + 4। 3 + 4 को ऐड करेंगे, आएगा 7 विच इज ग्रेटर देन व्हाट 5। तो पहले हम ये निकाल के देखेंगे एनी ऑफ द साइड लिखा हुआ है तो हम सारे साइड्स के कॉम्बिनेशन को ऐड करके देखते हैं। नाउ वी विल ऐड 3 + 5। So firstly do 3 + 5. It will come 8. So it is always greater than the third side, that is 4. Now take another combination. 4 + 5. It is coming 9. This is obviously greater than 3. So we can say in all the 3 condition it is coming that the sum of the any 2 side is greater than the third side. So this kind of triangle is possible. These kinds of question are coming जिसमें यहाँ पे डेसिमल्स के कुछ दे दिए जाते हैं क्वेश्चन, उसको हमें सम करके बताना होता है कि ट्रायंगल्स पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रॉपर्टी, वो ट्रायंगल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम। और ये प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्रायंगल की। कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है अगर हमारे पास तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी ये होती है, ये पाइथागोरस ने हमें बताया था इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो साइड है दिस इज कॉल्ड द बेस, इसको हम लोग बेस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, द परपेंडिकुलर, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, द हाइपोटेन्यूस। ओके, सो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूस। और अगर हम इस ट्रायंगल को नाम दें ए बी सी, सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस द स्क्वायर ऑफ द hypotenuse is always equals to the squares of the sum of the other two sides ab square plus bc square. This is known as the Pythagoras property. और एग्जाम में इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है जिसमें आपको कई तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर एक लैडर है और आपको इसकी वॉल से इस लैडर के बीच का डिफरेंस दिया होगा और यहाँ तो आपको लैडर की लेंथ बतानी होगी कि वो कितनी है, या फिर यहाँ पर एक विंडो है ऐसा करके दिया होगा तो आपको उस विंडो पॉइंट का बताना होगा कि ये कैसा है। और भी कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं क्वेश्चन सॉल्विंग का एक अलग वीडियो बनाऊंगी इस
वीडियो में मैंने आपको कोशिश की है कि सारे प्रॉपर्टीज जो ट्रायंगल्स की हैं वो आप समझ लें। पाइथागोरस प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये आपके जो प्रॉपर्टी है आगे कई क्लासेस में काम आती है। इसको मैं फिर से एक बार अलग से समझाने की कोशिश करूंगी। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो कमेंट में कम से कम एक बार लिख दिया करिए कि मैम समझ में आ गया है। और ये भी ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ठीक है, और मैं और मन से वीडियो बना पाऊंगी। टिल देन, गुड लक।